अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। सोनम वांगचुक ये रिहा करना आई तत तमो दिल्ली मज जराई इबलाग सत कत करान वोनमुत ज लद्दाख लूख महजब तरीकस मज मरकजी सरकार सत कदबात यछान ताहम चुन मरकजी सरकार तरफ लद्दाख कन लूकन सत बामाने कदबात करनस हवाले कह वत इख्तियार करना आमज यम सत लूकन मज मोयूसी सपजमज। We were sure of a victory or a win in the court. But you know, I'm a little greedy person. A win was not enough for me. I was always looking for a win-win. A win would be just Sonam Wangchuk wins. And what good is Sonam Wangchuk winning if Ladakh and the Himalayas and the causes he represents do not win? So therefore, we were looking for a win-win for the causes also, and even more, a win-win-win. Now, with the recent extending of hands by the government to build trust, as they have said, and to facilitate meaningful, constructive dialogue. This is a great thing because this way Ladakh will also win and our cause will also win. So it will be truly a win-win. It will be a win-win-win also because the government will come out looking better and our image in the world will be a little better, and it will be even better win-win-win if the Honorable Court also records a judgment in this case apart from revocation of the order itself, so that it guides future executives and future policy makers about how to use and especially how not to use such laws as National Security Act. So I'm in that way happy that it can be a win-win-win. I hope it can be. As I said, they have offered for constructive, meaningful dialogue. Actually, this is all what we were struggling for, to start dialogue. And we had to struggle so much, walk from Leh to Delhi, go on unshans, go to jail, to exactly get that. If you see all movements in Ladakh, they are appealing for starting the talks and dialogue process. Even yesterday's rallies that I watched from here, the demand was to resume talks. Where do you find such a place and such a people? Normally you find people leaving the dialogue table and picking up guns, and government appeals to them, drop your guns and come to the discussion table. That's what you would have seen most of the time. Here is a people who is appealing to the government, please come on the discussion table and start a constructive dialogue. Now that government also says, let's start a meaningful constructive dialogue and build trust, I think we are starting to sink, and I really hope that not just dialogue, not just talks, but meaningful, effective talks which lead us to something good. Otherwise, it has been not just 6 months, but 6 years of struggle for us to get to the meaningful, constructive part of the offer. So I'm happy to see in their offer and in their order of revocation that this is done to build trust and confidence for meaningful, constructive dialogue. And I really hope it yields that. It has made my job. रियासी में आज पुलिस तरफ पासिंग आउट परेड सांस करना आमुत यथ LG मनोज सिन्हा पुलिस सरबराह तो दोमो पुलिस जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तिंदो घर वालों शिरकत कर अत मौके पे ट्रेनिंग मुकम्मल सपदनस पे पुलिस एहलकार पासिंग आउट परेड सपुत तत LG मनोज सिन्हा यमन एहलकार मुबारकबाद पेश करान वोनमुत ज तिमन वमेद तिम करन पन फरज चुकसान अदा यल जन पुलिस सरबराहन अत मौके पे जम्मू कश्मीर पुलिस तारीफ करान वोन ज लूकन हिंद हिफाजत
हिफाजत यकीनी बनावनस तो अमन अमान कायम करनस मज जम्मू कश्मीर पुलिस अख अहम रोल अदा करान। घराना उसमें शामिल होना अपने आप में गर्व की बात है। आपकी तालीम में कमी ना आए, ऐसे उस्तादों को हम कैसे भूल सकते हैं जिनकी दुआओं से हम क्या से क्या बन गए। आज की पासिंग आउट परेड द्वारा करम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के 17वें बैच के सभी बहादुर कांस्टेबल्स को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और राष्ट्र सेवा का महान दायित्व अब आपके कंधों पर है। आप जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और चुनौतियों के नए रास्ते पर चलने वाले हैं। मेरी कामना है और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना भी है कि आपको सौभाग्यशाली बनाएं और आपके सभी प्रयासों में। सबसे पहले जे.एंड.के पुलिस की तरफ से मैं काबिल एहतराम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का तहे दिल से मशकूर हूं कि आज जो इस बैच के लिए इन 410 बहादुरों के लिए इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज सर आप यहां आए और आपने सलामी ली। रिक्रूट्स, आज से आप जे.एंड.के पुलिस के रेगुलर मेंबरान बन गए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और खास तौर पे आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं। सर, सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर तलवारा ये 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था और 2000 में इसको अपग्रेड किया गया था। इसको एस्टैब्लिश किया था एडवांस टैक्टिकल और वेपनरी ट्रेनिंग के लिए और खास तौर पे इसका फोकस था काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए जे.एंड.के पुलिस के बहादुरों को तैयार करना। धन्यवाद सर। मेरा नाम निसार अहमद खान है सर। मैं बिलोंग्स टू कुपवाड़ा हूँ सर। मेरे फादर साहब का नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। वो आर्मी में एक्स सर्विस मैन थे सर। तो उन्होंने अपना टाइम जो है आर्मी में रह के अपने देश को दिया है और उनका एक सपना था कि मेरा बेटा पुलिस को चुने और आज मेरा नाम कमरुद्दीन भट्ट है। बहुत खुशी महसूस होती है जब ऐसा इवेंट आप करते हो। एक साल कम से कम हमने यहाँ पे गुजारा और बड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस की, सक्सेस भी देखा, फेलियर भी देख लिया। बड़ी स्ट्रगल होती है। मैं यही कहना चाहूँगा हर कैंडिडेट से, हर जवान से कि एक ज़िंदगी में एक बेसिक ट्रेनिंग जो 9 मंथ्स की होनी चाहिए। इसमें बंदा सब कुछ सीख जाता है। बंदा अमीरी गरीबी। मेरा नाम रोहित केसर है। मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ। ट्रेनिंग अच्छी खासी रही, हमें बड़ा मज़ा आया इधर। अब मिस भी करेंगे ये दिन, जैसे यहाँ की जो हमें हम उस्तादों को मिस करेंगे बेसिकली। यहाँ के CDI साहब BHN सर। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 2017 में भर्ती हूँ और आज हमारी पासिंग आउट परेड हो गई। कितना शर्मा है और आज के दिन का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। अब हम जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं और आगे भी यही है कि हम लोग जो देश के लिए है बहुत काम करेंगे। नाजरीन, खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। ईरान मौजूद वादी हिंद तलब इल्म मुल्क वापस अन्न हवाले ये मरकजी सरकार तरफ कोशिश जारी तया तलब इल्म पतमन दोहन मज घर वापस वतमित। ये जन आज तो श्रीनगर मज वालदेनों तरफ खामोश एहतजाज करना आव। यथ दौरान वन आव ईरान के मुख्तलिफ शहरन में मौजूद कशर तलब इल्म घर वापस अन्न सवाल गसन संजीद कदम तुलने यन युथ जन वालदेन मज पद सपदमित खदशात दूर करने यन। मेरा नाम रियाज अहमद है। मेरा बच्चा अज़रबैजान बॉर्डर पे इस वक्त है, स्ट्रैंडेड हैं। 200 बच्चे हैं तकरीबन। कुछ बच्चे वहाँ से निकले थे लेकिन अब अज़रबैजानी गवर्नमेंट ने उनका बॉर्डर क्लियरेंस अभी वो नहीं दे रहे हैं और नतीजा ये है कि वो बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो रो के फ़ोन कर रहे हैं और हमारे भी जो पेरेंट्स हैं माएँ बहुत परेशान। एम्बेसी का तो कांटेक्ट कहाँ होता है? एम्बेसी के नंबर्स कांटेक्ट नहीं होते हैं
وہاں سے وہیں سے اگر کبھی بچہ فون کرتا ہے تو یہاں سے تو کوئی فون جاتا ہی نہیں ادھر. اب ہم چاہتے ہیں کہ جو انڈین ایمبیسی آذربائیجان میں بھی ہے وہ بھی تھوڑا بہت ان کو ایکٹیویٹ ہو جائے تاکہ ایک گروپ کو پراپر گروپ کو نکالا جائے وہاں سے. اور کل بھی کچھ 4 بچے نکلے ہیں. وہ کیسے نکلے ہیں, وہ ایگزٹ کوڈ کہاں سے آ گیا ان کے پاس, ہاؤ دے ہیو کم ٹو دس سائڈ, کس نے ان کو اندر کیا, مطلب یہ کوشچنز ہے نا, دیز آر دا کوشچنز. وہ بچے کیسے آ گئے, مطلب تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ایم ای اے کے پی اے ہیں وہ ہم سے ملے, ہم نے ان سے بات کری کہ ہمارے بچوں کو کیسے آپ ریلوکیٹ کریں گے. تو ان کا یہ تھا کہ ہمارے پہ بہت سارا برڈن ہے, یہ آپ ہی کے یہاں بچے نہیں اسٹرینڈڈ ہے, جو بھی ایڈجوائننگ ایریاز جو بارڈرز کے ساتھ مل رہے ہیں ایران کے, وہاں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے بزنس مین, بہت سارے امپلائیز وغیرہ بھی وہاں اسٹرینڈڈ ہے. تو ہم صرف آپ کے بچوں کو اس ٹائم پہ نہیں نکال سکتے ہیں. تو ان کا یہ تھا کہ یو کین ڈو ون تھنگ, یو بک دا ٹکٹس, یو بک دا ویزاز. ہم اتنا کر سکتے ہیں تھرو پراپر اسکارٹ, وہ ہم ان کو بارڈر پہ لے جائیں گے. اتنا تھا ان کا. اور کہ پورا کوآرڈینیشن ہو ہمارے ساتھ ان کا, پیرنٹس کا, تھرو پراپر چینلز, تب تک نہ نکالا جائے جب تک ہم پوری طریقے سے آپ کو بتائیں نہیں. تو پورا ہمیں جب بتایا گیا, ہم نے تب جا کے, ہم دہلی میں تھے کچھ ہم پیرنٹس, تو جب ہمیں بتایا گیا, ہم نے یہاں کے پیرنٹس کے ساتھ بھی بات کری, تب ہم نے ان کو بولا کہ ٹکٹس کریں. بہت سارے یہاں پیرنٹس ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی ٹکٹ کری تھی تھرو ارمینیا بارڈر, اور وہ کینسل ہو گئی تھی. تو پھر ہمارے جو بھی بیچ میں بندے تھے, those who were talking to embassy and they were forwarding their message up to the parents, they told us کہ we are یہ ہم کر رہے ہیں کہ through آذربائیجان بچوں کو ایویکویٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, ہمیں ڈیٹ دیا گیا وہیں سے, کس ڈیٹ پہ آپ ٹکٹ نکالیں, کس دن پہ آپ ٹکٹ نکالیں, کتنے بندے نکالیں, کون سا کتنا گروپ ہونا چاہیے. 50 کا گروپ بولا انہوں نے, کرے 50 کا گروپ, اور پھر ہی وہ بارڈر پہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے, ویسا ہی بچوں نے کیا. ہم نے ان کے ساتھ بات کری, انہوں نے گروپس بنائے 50 کے, اور پھر ان 50 کا ہم نے ٹکٹ وغیرہ اپنے اپنے پیرنٹس نے کر دیا, ویزاز بھی کر دیے, ٹکٹ بھی. اب اتنا تھا کہ ان کو کیا کرنا تھا کہ ان کو بارڈر تک لے جانا تھا اور ان کو بارڈر کراس کرانا تھا. 70 بچوں کا جو 14 کا گروپ ہے وہ بارڈر کراس کر گیا تو آذربائیجان. اسی دوران کیا ہوا, جو 21 کے ہیں, جو 18 کے ہیں, جو 19 کے ہیں, ان کو بھی کراس کروایا گیا اس میں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہمیں یہ بول رہے تھے کہ پراپر کوآرڈینیشن ہونا چاہیے, ویئر از دا کوآرڈینیشن بٹوین دا ایمبیسیز. گنڈ براٹ سوپر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی علاقہ مز روزن والن لوکن رنگ رنگ مشکل ویترن پیوان, تمہ حوالہ کئی آئی پھر حکامن زان تہ دن آئی تام کھانا قدم تلنا آمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقہ مز لوکن بنیادی سہولیت آیتن تھونس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین. یہ گن براٹ زنگیرس مز گام, زبراٹ براٹ کلان تو بیس گن براٹ. مشکلات ہر کن چیز مشکلات تھی وچو روڈ, تھی وچو یہ گو پنچایت برو کن ات وچو دوب کیا برو کن یہ بنایا تم دہ ڈسٹ بین نیشنل, یہ بنو گندگی خاطر پنچایت گورنمنٹ پنچایت برو کن, تھی وچ تمام گندگی کی مشکلات گن براٹ تحصیل بمے, واریاہ مشکلات گامس نہ مطلب روڈ تھی وچو کرو گامس کیا موقع نہ بنا پکن یہ تروک میکڈم تروک پرت تکری ڈار صبن ترو کانگریس پتہ آئی نیشنل حکومت یمو دپ یہ ترو اس مگر سز سی, اس لیے تھی کرو موقع روڈن یم روڈ ٹھیک. ناظرین خبرنامس میں تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. اپر سنائی محلہ پنیالی سرنکوٹ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوی علاقہ مز صاف چناب چہ ویسے حوالہ کئی آئی پھر حکامن زان دن آئی, تاہم آز تام کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمز علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ہاں سب سے اگر
बड़ी मुश्किल है हमारे लिए कि पानी का बोर निकाला हुआ है, 4 साल हो गए यहाँ से, लेकिन पाइपें भी बिछा दिए हैं इन्होंने, लेकिन आज तक पानी कोई नहीं उसमें लगाया है। लिहाजा 150 घर जो यहाँ है वो पानी से बहुत मुतासर है। इस रमज़ान में कैसे गुजर बसर करते हैं? बड़ी मुश्किल से ये इस रमज़ान में हमने पानी इधर हमारी तरफ से तकरीबन दूर है 2 फरलांग, तो वहाँ से जाकर औरतें लाती हैं और सर पर उठाकर तो फिर पानी पीने का वहाँ से लाती हैं। लिहाजा इस पानी की जल्द अज जल्द कुछ न कुछ करें ताकि हम लोगों की ये परेशानी दूर हो जाए। ऐसा है कि पिछले काफ़ी अरसा दराज से हम ये जो पानी का मसला है इसके शिकार हैं। जैसे कि पहला हमारा जो पानी चल रहा था चश्मे का, वो वाक़ई ज़लज़ले में गायब हो गया। उसके बाद हमारे पास जो वहाँ के जो पानी है वो नाले में इधर उधर जो है वो बह रहा है, तो उसको हम रिकवर नहीं कर रहे हैं। तो उसके बावजूद जो है ये हमारी स्कीम चली थी, ये जो 4 साल पहले को बोल रहे थे कि अभी इसको हम एकदम जो है वो कामयाब करेंगे, पाइपें पड़ी हुई हैं, सब है, लेकिन महकमा कोई ज़रा भी इसकी तरफ ध्यान नहीं। हमारा जो मोहल्ला है इसमें काफ़ी साल पहले से जो है कोई चश्मे का पानी था, लेकिन वो जब ज़लज़ला आया तो उसके बाद वो पानी बिल्कुल गायब हो गया। उसके बाद यहाँ 4 साल पहले दरअसल राजौरी लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़कें खस्ताहली हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज सड़कें शहर पर करने सवाल गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन दसल तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वाले लूकन बचन वोल मुश्किल दूर करने। ये जो रोड आप जिसकी बात कर रहे हैं ये 10 साल की रोड है और ये मैंने शुरू से ऐसी ही देखी है। मुझे भी यहाँ आए हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। इसी खस्ता हालत में ये जो रोड है आज तक मैं देखते आई हूँ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक्चुअली एक बार इसको ब्लैक टॉप किया गया था 2019 में, लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने के कारण ये रोड जो है इसका जो ब्लैक टॉप है लुक रहना वार्ड नंबर 14 से। सर देखिए हमारी इस रोड की क्या कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने खड्डे पड़े हुए हैं। जब भी यहाँ पे रोड की रेनोवेट के लिए आते हैं तो बस थोड़ा सा काम करके ऊपर से मिट्टी डाल के और थोड़ी सी ऐसे ऊपर से करके ब्लैक डाल के तो चले जाते हैं। हमने कितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है। सुतराशाही श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने सवाल कई आई फिर म्यूनसिपल कमेटी जिम्मेदार मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लोग आवलिनस मज हना आए। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने सवाल गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। यहाँ देखिए, यहाँ का ड्रेनेज जो सिस्टम है बिल्कुल नाकारा है। ये बिल्कुल हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। अब स्कूल का वक्त आ गया है क्योंकि उनके लिए मुश्किलात खड़े हो जाएंगे, और ख़ास तौर इस दीवार को हम कई सालों से देख रहे हैं, ये बिल्कुल खस्ता हाल है। इस पे आप नज़रसानी करिए। आपकी वसादत से हम ये गवर्नमेंट अपने हुकाम से ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि इन पे आप नज़रसानी करिए और हमें देखिए, और हमारा मतलब ये हमें अपने तहवील में लेकर और इसकी कंस्ट्रक्शन को, और ये जो माले की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमें, क्योंकि छोटे छोटे ब्रोट गो श्रीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर सबस समझोस रिप्रेजेंटेटिव अब तुन क्या दिस अगर तू दूर खोलक तो पे सैनिस महलस पे नजर युत फर्क तुस सैनिस महलस मज बसान तुझ सान महल प्रॉब्लम सारे खुद बोड़ बार प्रॉब्लम तुम देवार यप यो तैयार वथ यप स्कूल बच्चे बाकी बच्चे हो सकता खुदा न कुछ वक्त गो कम हादसा तम सात क्या बन 3 रेत ब्रोट बाज़ाब्त रिप्रेजेंटेशन तम अच्छा तन पे गो अमिस दम कत वो दोप ड्रेनेज पुलिस डिपार्टमेंट मल बात नान मकर नान सह सैनिस महलस मज महलस असल ड्रेन सह बुत डिफेक्ट सह नान अत पेश किन आब कतर कतर नान बाकी नान अत दोपन अद ये करो ठीक बेस अना और होन और त्रावान सैनिस मज तुम मोन 50-60 होन तुम पान तु होन कत यम 2-3 चीज कर। शुमाली हंदिस बंडपोर से तलुक थवन वाले लोगों तरफ वन आमद यदवे बिजली फीस अदा करने सवाल एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करने आम ताहम यम वरी यह स्कीम अमल मज अन्न आमत यम सत मुकामी लोग तजब्जुक शिकार सपद। मुकामी लोगों तरफ हुकूमत मांग करने आमद यह स्कीम दोबारा अमलावन सवाल गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन आम लुकन बिजली फीस अदा करनस मज आसानी सपद। जनाब, हम जो ये एमनेस्टी स्कीम पावर डिपार्टमेंट के लिए थी
PDD डिपार्टमेंट जो इसको बोला जा रहा था, तो उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली थी जो LG गवर्नमेंट के वक्त से जो यहाँ लागू हुई थी, बाद में उसको एक बार फिर उसको एक्सटेंड किया गया था 1 साल के लिए, मगर अब इसका जो डेट है वो ख़त्म होने वाला है। ये एक बेहतरीन एक इकदाम था, बेहतरीन एक इनिशिएटिव था, खासकर गरीब गुरबात के लिए जो ये एमनेस्टी स्कीम थी, जहाँ इस वक्त कश्मीर में बहुत मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं। तो वहाँ दूसरी तरफ इनको ये स्कीम की वसादत से जो पावर पे बिल जो इनको अदा करनी थी, उसमें उनको बहुत आराम और बहुत इनको गुजारिश हमारी यही है। पिछली बार उसको LG सरकार ने किया था, वो एमनेस्टी जो स्कीम थी उसको किया था, मतलब वो चल रही थी। उसके बाद 1 साल इसने भी किया जो हमारी गवर्नमेंट है। अब हम इस बार ये फिर से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे दोबारा से ये एमनेस्टी स्कीम मतलब लागू होनी चाहिए, ताकि जो आम लोगों के पास फीस बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ा हुआ है और इंटरेस्ट उनको चढ़ा हुआ, अगर दोबारा से फिर से वो लागू हो जाती है स्कीम, तो जो आम लोग हैं वो आराम से अपना फीस भर लेते और अपने आप को राहत महसूस कर लेते। जैसे कि आप जानते हो कि उसमें रियायत मिलती। तो नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान में दी इजाज़त, खुदा सवाल।